warm good evening to all the participants. I welcome you all on 1st May 2021 Saturday at 8:04 p.m. So we are starting with 45th query session. As we all are aware, in this query session, we take live queries. So following the same tradition, we will go ahead. Now I request Vijay Agarwal ji to start this session with the first query. Over to you, Vijay Agarwal ji. Thank you, Rakesh ji. Thank you very much for all the participants for taking your time of weekend time. And I hope all of you are, your family, your near dears, all are fine. So let's start our Excel session, Excel query session. So every week we are having this Chopal, lot of learning, lot of new things, and with the help of each other, like we are enhancing our knowledge. So definitely today also we are going to have some new things, new queries. And last week actually we discussed one query. So which Rakesh ji is ready with the solution. So I believe we can start with that. And after that, I also have one query which I got today. That's also a very interesting query. So we'll try to find out answer for that also. So Rakesh ji, we can start query with you. So which today evening, like in group, you told that you are ready with the solution. Ji. Ji. So I take up that query. In fact, that query was raised by Vijay Gupta ji. And today, because of certain reason, he has not been able to join that. Yeah, maybe he's going to join later, but still right now he's not joining. So just actually I had a talk with him. So I'm sharing my file, or do you suggest we should defer this query till the time Vijay Gupta ji joins? Whatever way you suggest. That also we can do, but if you have any other query, so or maybe like the other participants, so if they are having some other question, or maybe they have any question, or maybe they have some answer, some interesting query, so maybe we can have take it later. So that's fine. So maybe end of the like in case we are not going to have anything, so then we can have, or maybe if once Vijay Gupta is going to join, then we can take this query. No problem. Okay, I'm holding in case, any of the participants, they have some query, we can take it up. Otherwise, yes. If there is no such query immediately, then I will take it up. So I'm waiting for a minute's time. If we get some query, we will take up first. Otherwise, we will go ahead with this. Right. So in the meantime, we get any query from anyone. I have one problem on my screen when I have shared this file. My Excel file, is it visible right now? Excel file. Yes. Your screen is. So my screen is visible and Excel file which I have opened, that is visible. Yes, okay. That is visible. My query is at the top, I get some panel where it is written on with the black background: mute, stop video, security, participants, new share, pause, remote control, more. So that thing, that ribbon, is disturbing me. If I open the Excel file with the full maximum size, then in that case, upper roughly half-inch height, this much area is not visible. So which one, what I have done. No, which one actually I didn't get your exact question. At the top of my screen on my computer, probably that is not visible at your end, I am getting one ribbon with the black background and certain 7-8 icons are there with this mute, stop video, security, participants, new share, pause share, remote control, more. So this ribbon is creating problem in a way that I'm not able to see what is there, below that ribbon. So therefore, I have reduced the size of this Excel file so that I should be able to see it comfortably. So is there any way out, without reducing the size, without reducing the height of this Excel file, can we
see, or we can remove the ribbon coming at the top? No, but actually, exact problem which you are facing, that actually I am not able to see or visualize. What you are If talking, so that like thing actually I'm not able to see. Maybe like other like participants, so they can tell or whether they are, because right now I am seeing your this no, people at the Excel other screen. end, at the remote end, they don't see the ribbon coming at the top. But at my end, when I see on my screen at the top, roughly half-inch width ribbon in a horizontal form, it is coming and few icons are there. No, So that, that I'm able to see like something like file, home, share, and view. For like your these tabs are there. You are talking about that over, one. oh, no, over and above, there is a ribbon which is appearing on my screen. Probably that is not appearing at your end. Mm, that so then I mean, if yes. there is a solution we can discuss, or right now what I have done, I have reduced the height up to this level so Okay. that it is starting after ribbon finishes. It is starting, this file is starting from there, so that So I should be able to see the top, whatever is written at the top. So this is, I mean, the temporary solution I could get work out. And if there is any other way out, then I would like to know that. no, So but having, no, that I am not aware. And Shahil is also writing that ribbon is not visible to our screen. So that's why, like, if we are not able to see, so maybe later on, uh, okay, okay, we can discuss later yeah, on. Now and if V and VS he wants to share some query. So yeah, let's take a query from VS, please. yeah, VS. So let me give access to VS. Yes. So I have made co-host to VS. So please, you can share your screen. Vijay ji, one thing we just And forgot. Kailash Sharma is writing to you for Rakesh ji that you can drag that ribbon to your right side. Okay, You can all drag right, it to your right okay, side. okay, Just try to drag it right side. So maybe ji, that solution will work because all right, Kailash Sharma, so he's writing it. So definitely correct. he would have faced this problem. Vijay ji, sorry, I mean, before we move ahead, we have forgotten something very important thing. Our very dear participant, Ashley. I mean, she has been participating since inception in this session, and in most of the sessions she was present and she was very active. And last Sunday morning only, we got this news. Probably because of Corona, she has left this world and she has gone. We will be missing her. And I pray on behalf of all that, I mean, God, let God give strength to the family members and rest her soul in peace. It was really very sad news. And the minute I heard that, I was stunned what has happened. And Exactly, like जो है I you don't know like me like she came on my birthday to my office Vijay Gupta. So like I still like can't believe when like Vijay Gupta like called me and he told me that this happened. So like that was something I like it. I was stunned that 3 4 days back actually I was having chat on WhatsApp, and now within 3 days 4 days what happened, and like she's no more. So really like for me like it's really a great loss, and she was very like enthusiastic, very keen being a mathematics like teacher. So really she was uh, like I can't like describe in words. So yoga also like with my uh, like she also joined. So she was with yoga, she excel. So really she was like doing very well, and yeah, enthusiastically like she was doing lot of queries like she was having.
every day she, and lot of other sessions also like she attended. Even like after attending my 10 days session, so there was one more session of FIP for 10 days. So just like learning, she wants to learn more. So the same course actually I was having, but she still like decided to join that course. So, and every week she was attending. So really like, so I also प्रे टू गॉड दैट प्लीज उसको अपने धाम में जैसे जगह दे, और उसकी फैमिली को, सी इज हैविंग ए सन ऑफ लाइक 12th में उसका स्टडी कर रहा है. बट आज की डेट में तो बहुत ज्यादा केसेस, लेकिन क्या होता है अपने भाई कोई होता है तो बड़ा बहुत ज्यादा दिल को जो है लगता है. जी, it was because of corona or some other reason? हाँ नहीं, कोरोना ही, कोरोना, बिकॉज ऑफ कोरोना. चलिए सर आगे बढ़ते एनीवे, हैं. हाँ हाँ, तो मिस्टर वीएस, तो प्लीज यू कैन शेयर योर क्वेरी. एंड मिस्टर हेलो. यस, और इसके बाद यस यस इसके बाद कैलाश जी भी इज हैविंग वन क्वेरी. तो आई वुड रिक्वेस्ट आफ्टर वीएस दैट कैलाश जी शेयर वन क्वेरी. Yes, VS. Sir, yeah, namaskar, sir. Namaskar. That one of the participants, this thing, to hear that. Anyway, let her soul rest in peace. So the thing is, this trick actually Excel trick, sir, I have learned from Bill Jelen, one of his short. Yes, yes. I know Bill. I know Bill Jelen. I have met him. Yeah, okay, sir. Also. Since you are in MEP, probably would have met him. Yes, yes. This trick actually I learned from him. The thing is, now here we have the names, and he asked us to add this one. Like no, but actually we are not able to see your screen. Okay, can you share your screen, please? Just a second. There was in between there was disruption. Yeah. Now we are able to see your screen. Please go ahead. Now is it visible, sir? Now. Yes. Yeah. This is a trick I learned from him only. This is for a drop down. Like in case of like that in data validation, we never used to get the drop down. Like we drop down, we get, but we cannot choose. We have to entire list. So instead, what he has suggested is here we have like one. This is like a data type. So this we have the names, and we have to add this one. Code/code and E5. This is a name we have suggested this way. Just we have to add one more column, and we have to prefix these three. Right. /code. Okay. Then suppose if here slash get all the names like Kiran. So I Kiran. Enter. Okay. It is even with one or two this thing. Alphabets also it is easily traceable. So there is no need to make the data validation also. Then I can KUMR. This is a data validation, sir. Like, see, now I get all the list now. So now what is happening is, now what I have done is, so this is I have learned recently. Just I wanted to share that. See, we have the list of names, and we have to add. We have to go to formula, and we have to add the. We have to just a second. See, from the formula manager. So see, we have to create a name from selection left. So likewise, we have to name them first. Okay. So then what happens is, even wherever I want to this thing, call these names, I have to call and I have to add like this. That's finished. Sorry. Equal to /KU. What is the logic, sir? Actually, the thing is, he has explained the trick, but I couldn't get the. No, so this is for me also. It's something new. So I was also not aware about this. Yes, naming is okay, and whatever naming is there, if I'm going to type that name, so obviously that will come. So maybe because of slash, because the slash is the like the first character. So when we are going to type the slash, so automatically it is giving us all the names for that. So that's the thing actually. So it is giving me. So
maybe we can explore it later on and we'll see that okay how it is working. कैलाश जी, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूं, तो आप जो है अपनी क्वेरी जो है वो शेयर कीजिए प्लीज. सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ, आपकी स्क्रीन विजिबल है. वेरी गुड इवनिंग सर, सबसे पहले तो आपको. गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग. सॉरी आज ये लाइक जो है इट वाज रियली. नो इशू सर, कई बार होता है ऐसा. हाँ हाँ. सर मेरी एक क्वेरी ये थी कि जनरली हम जब भी डेटा वैलिडेशन में कोई लिस्ट मेंटेन करते हैं, हाँ हाँ, तो इन दैट केस हमारी लिस्ट कभी अपग्रेड करते हैं तो वो लिस्ट मेंटेन रहती है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती. मतलब नए कोई एलिमेंट्स ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होते. तो अच्छा. उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं कि टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल. बट वो डेटा वैलिडेशन के अंदर अप्लाई नहीं हो रहा. नहीं होता है टेबल वैलिडेशन तो मेरे हिसाब से. वो टेबल के थ्रू अप्लाई नहीं हो रहा. सेकंड थिंग, मैंने उसका फिर एक अल्टरनेटिव भी सोचा था कि आई कैन अप्लाई यूनिक फॉर्मूला इन दी होल रो. बट वो यूनिक फॉर्मूला भी डेटा वैलिडेशन में अप्लाई नहीं हो रहा है. तो नहीं, वो डेटा वैलिडेशन में वो तो जो है ना एक उसकी ये है कि कहीं ना कहीं लाइक डेटा वैलिडेशन में वो अप्लाई नहीं होता. उसके लिए आपको एक अलग से पहले वो बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहां पे एज ए हैश लगा करके फिर अप्लाई होगा. वो डायरेक्टली वैलिडेशन में अप्लाई नहीं होगा वो. तो सर एक बार के लिए कैन यू प्लीज सजेस्ट मी लाइक दैट थिंग? हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लाइक जो है ना, अब यहाँ पे आप जाओ और इसमें डालो यूनिक डालो और इसमें ये दे दो आप. हाँ ठीक है, एंटर कर दीजिए. सर हमने यूनिक का फॉर्मूला तो यहाँ पे लगा दिया. हाँ, अब आप उसमें जाइए डेटा वैलिडेशन में एक अलग से डेटा, और इसमें जाइए डेटा वैलिडेशन. हाँ, और यहाँ पे लिस्ट, और इसमें डाल दीजिए ये रेफरेंस F2 इक्वल टू F2 और हैश डाल दीजिए हैश. बस ओके कर दीजिए. अब ये आ रहा है. अब आप उसके अंदर जाकर के ऐड करिए, वहां पे भी ऐड हो जाएगा आपको. लेफ्ट में था, हाँ ये लेफ्ट में. कलर कर लीजिए ताकि ध्यान रहे आपको. ये देखिए. ठीक है सर. ठीक है ना? हाँ जी. तो ये तो इसका अल्टरनेटिव मेरे पास ऑफसेट एंड ऑल वो सब चीजें तो थी, मैं ऑफसेट के थ्रू कर सकता था, बट वो काफी बड़ा फॉर्मूला बनता है. हाँ नहीं, वो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड, बट ये जो सॉल्यूशन है ये ऑफिस 365 में ही चलेगा. ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर. Sir, namaskar sir. I have one more query. Srinivasan this side. हाँ हाँ, यस सर यस. ये हाँ सर, कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसा बैंक अकाउंट नंबर है, sometimes it starts with 0, right? So when we on the other side, the people generally they send the data with 0. Either they leave some space in between, or they put some asterisk mark. So something their data is sending. See, when we consolidate the data, when we copy it into another Excel, so that 0 goes. Or even when we आप एक बार एग्जांपल लीजिए. लाइक आई हैव सॉल्यूशन फॉर दैट. मैं जीरो लगाऊं इसके आगे. आई एम एबल टू सी सर. नाउ दिस एक्सेल शीट इज विजिबल. हेलो. 0 लगाना सर, एंड कोड लगा के हेलो इट गेट्स सेव्ड एज टेक्स्ट. यस, ये लगा दिया, कोड लगा के. इसको कॉपी करके दूसरी एक्सेल शीट में कॉपी कर लीजिए सर. क्या? Just copy it and paste it in a different place. Yes, ये मैंने कर दिया. Paste value. So instead what they do is this is okay. See, the thing is in the initial stage itself they have put a code and they have saved the name. Say whatever the number they have saved with along with the code. See, generally people do is 0 space 1 space 2 space like that they send. See, we know that initially we know that we have to save as a text. So what we do is either we attach a code and we type the number, or we convert the field into text, then we are typing. So some people what they do is, the engineers what they do is 0 space 1 space 2 space like that they type. What we do is we copy and replace a space with a null. Then what happens is it's converted into exponential form and the 0 goes.
What is the remedy for that, sir? No, so you give some example now, like now suppose karo, like you are having A something zero like zero, space. No, zero not like space, zero space, one one, space, two space, three space, like that they type. okay, You know, see, they are setting like this. okay, then So now, we want only 0, 1, 2, 3 without space. yes, so now suppose you are going to paste value here, so this is like that. So now you want without space, but with zero as a Zero, prefix. yeah. Zero right? should be there. Yeah. So what you can do, maybe like let's have this column like B column, and let's make this column as a text. Okay. So sir, is this you make it 15 characters, otherwise this will work. You make it okay, to so 7, 15, 8, 9, 0, 1, 2, okay, 3, this is okay. Yeah. 4, 5, right? Yeah. And 6. So I have made 16 characters. So now you copy it and let's see. So this is 16 character. Okay. And like that you are having different, right? Yeah, yes. Now what you can do, Control H, and if you are going to remove the space, find what space, replace with blank, replace all. Yeah, this gets into exponential form. Okay, so now like what you can do, because from here like starting 0 has gone. Yeah, starting 0 is also gone, and the number is exponential form. So number, like if like that, so what we can do in case we are going to have this number format, and if we remove decimal, then we can have like this. So that 0 goes, sir. See, suppose in case when we send a bank advice, without 0, the RTGS or whatever NEFT will. Yes. So that's the problem. 0 so has to. Yeah. So what we can do in that case, like if you are having data like this, so what I'll suggest, you can do substitute formula. Okay. Substitute, and then you select this one, and old text, old text you say space, and new text you say like this, and enter. And here you make general F2. So you see automatically now you are going to have, and this is going to be in text. Hello. Thank you, sir. Vijay sir, I have a doubt in this case. Yes, please. सर कई बार क्या होता है, अगर हम मोर देन 16 डिजिट के कोई भी नंबर को हम एक्सेल में लिखते हैं तो लास्ट के जो डिजिट्स हैं वो उसको ऑटोमेटिकली 0 में कन्वर्ट कर देता है. नहीं, लेकिन अगर ये टेक्स्ट में होगा तो नहीं करेगा ना. वो तो ठीक है. एग्री, अगर वो टेक्स्ट में होगा तो नहीं करेगा, बट इन दैट केस हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे. अगर लेकिन अब अगर आपका 15 डिजिट से ज्यादा आपको क्या चाहिए, लाइक जो ना, in that case what is your actual number? So generally मेरे को नहीं लगता कि अगर 15 डिजिट से ज्यादा अगर होगा, and that you need in as a digital format. सर इसको कॉपी पेस्ट कर दिए सर, इस पे अभी आपने सब्स्टिट्यूट किया ना, उसको कॉपी पेस्ट करिए. हाँ, इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ये देखिए, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, टेक्स्ट में ही रहेगा. राइट. थैंक यू सर, थैंक यू सर. उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना कि हम लास्ट में जो 0 कन्वर्ट होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, उसका शायद 15 डिजिट के बाद जो है ना, फिर वो उसको अपने आप से वो डिजिट को 0 बना देता है. एग्री, या ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का, लाइक एनीबडी एल्स दे आर हैविंग एनी क्वेश्चन? यस पूनम मैम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं सर, मेरे को तो वो जो मेरे ख्याल से वो एक क्वेरी रह गई ना, जो राकेश सर ने जो है एक्सेल वाली बताई थी. आई कुडंट बी एबल टू गेट इट, क्योंकि बीच में ये थोड़ा सा मिसहैपनिंग हो गई. तो वो नेक्स्ट वीक लेंगे या कैसे? नहीं, अभी ले सकते हैं, अभी टाइम है. राकेश जी, आप थोड़ा क्विकली उसको क्वेरी को ले सकते हो. जी, आप इसको क्लोज कर दीजिए, मैं शेयर करता हूँ. जी हाँ, ठीक है जी, ठीक है. मैं करता हूँ, 1 मिनट. हाँ जी. मेरे को आपको अलाउ करना पड़ेगा सर. हाँ, मैंने को होस्ट बना दिया. इसमें अलाउ करने के लिए को होस्ट ही बनाना पड़ेगा या वैसे भी हम अलाउ कर सकते हैं? वैसे भी अलाउ कर सकते हैं.
उसके लिए क्या करना पड़ता है? बट वो स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे अपनी, आई थिंक। अच्छा अच्छा, मेरे यहाँ एक्सेल स्क्रीन खुली है, एक्सेल फाइल, इज इट हाँ विजिबल? हाँ हाँ, एक्सेल विजिबल है। फाइल, जी जी। सो मैं उनकी क्वेरी को लेके चलता हूँ। ओरिजिनल फाइल जो विजय गुप्ता जी ने प्रोवाइड की, इट इज लाइक दिस। एक सेकेंड, जी। सो दिस फाइल इज लाइक दैट। कुछ इनवाइसेस की इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनवाइस नंबर, उसकी डेट है, पार्टी का नाम है, और उसके साथ एक या एक से ज़्यादा यहाँ पे लाइंस हैं, जिस लाइंस के अंडर 0%, 0% यानी कि डिफरेंट डिफरेंट HSN कोड दिए हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली GST का रेट दिया है, और उसके सामने आगे फर्दर इंफॉर्मेशन है, बेसिक वैल्यू, GST वैल्यू इज नथिंग बट मल्टीप्लायर ऑफ दिस एंड दिस, GST रेट का और बेसिक वैल्यू का, ये GST आ गई, और फिर इसको और इसको ऐड करके और इसको राउंड ऑफ करके ये इंफॉर्मेशन कंपाइल की गई है। राइट। So this is the given information. In addition to that, what is given is, यहाँ पर पार्टी का नाम दिया गया, यानी कि ये मास्टर फाइल है जिसमें पार्टी का नाम है, GSTN नंबर है, और डेट ऑफ वैलिडिटी है। हमारे लिए ये दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक पार्टी का नाम और दूसरा GSTN नंबर। और इससे पहले ये ट्रांजैक्शन फाइल है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब उन्होंने क्या चाहा है वो रिजल्ट में है। जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो ये चाहते हैं कि पार्टी का इनवॉइस नंबर आए, उसकी इनवॉइस की डेट आए, पार्टी का नाम आए, और इनवॉइस नंबर में ये जो इनवॉइस हम पहले देख रहे हैं जिसमें एंड में 203 है, अब 203 के अंदर एक GST का रेट 0% है। वो 0% की जितनी भी HSN कोड वाली आइटम है वो सारी कंसोलिडेट, उसका सम होके यहाँ सामने आए। Sum of all such items in respect of this invoice where GST rate is 0%. अब अगर उसमें 0% से हटके भी, जैसे इसी इनवॉइस में 5% का रेट है, तो 5% की इंफॉर्मेशन अलग से आए, यानी कि इस इनवॉइस में 203 में A ऐड हो जाए और नेक्स्ट रेट 5% आ जाए, और 5% की सम आ जाए, जितनी भी 5% की HSN कोड की आइटम है उनका यहाँ सम आ जाए, एंड इसके बाद 18% की आइटम है तो 203 के साथ B लग जाए अपने आप, और फिर वो 18% की आइटम का यहाँ सम आ जाए। इसी तरीके से उन्होंने सारी आइटम के लिए ये इंफॉर्मेशन डिमांड की है। एंड इसके अलावा उन्होंने कहा है कि GSTN नंबर भी आ जाए, और ये GSTN नंबर इस ट्रांजैक्शन फाइल में कहीं नहीं लिखा हुआ। ट्रांजैक्शन फाइल में सिर्फ पार्टी का नाम है, और ये जो जिसको मैं मास्टर फाइल बोल रहा हूँ इसमें नाम के सामने हमारे पास GSTN नंबर है, तो ये नंबर भी आ जाए, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। सो इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, तो मैंने जो सॉल्यूशन निकाला है मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, कुछ हेल्पर कॉलम क्रिएट किए। एक मिनट जी, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ जी। हेल्पर कॉलम नंबर 1, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो ये इनवॉइस नंबर ये लिखा हुआ है, ये सिर्फ फर्स्ट सेल में लिखा हुआ है, फर्स्ट सेल ऑफ द इनवॉइस। इसके बाद जो डाटा है उसमें नहीं लिखा हुआ। तो मैंने क्या किया कि मेरे को हर एक सेल के सामने जहां पर भी कोई वैलिड एंट्री आ रही है, HSN कोड आ रहा है, जैसे यहाँ पर HSN कोड यहाँ है, तो मेरे को इसके सामने यहाँ पे इनवॉइस नंबर चाहिए था। तो मैंने एक छोटा सा फार्मूला लगाया। मैंने ये कहा कि इफ E4 यानी कि दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, क्योंकि कई जगह जहां आखिरी एंट्री आती है वहां ब्लैंक है, अगर ये ब्लैंक है E4 तो मेरे को ब्लैंक दे दे, और अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर मैंने एक्स लुकअप कमांड लगाई, और मैंने A3 से A4 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैक्सिमम वैल्यू है, A3 से पहले मैंने डॉलर लगाया और A4 तक लेके गया, यानी कि करंट सेल तक, यहाँ तक जो मैक्सिमम वैल्यू है, हमारे केस में यहाँ 1 आई है जैसे वैल्यू मैक्सिमम, उसको लुकअप करे पूरे A कॉलम में,
और रिटर्न वैल्यू मेरे को डी कॉलम में दे दे, डी कॉलम इज दिस। सो इससे क्या होगा, मेरे को हर एक सेल में ये वाली कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये फार्मूला लगा के मैंने जहां ब्लैंक है वहां ब्लैंक, नहीं तो यहां से लेके यहां तक जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उस मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे डी कॉलम में लुकअप करके मेरे को यहाँ पे ये रिटर्न वैल्यू देगा। सो दैट वे मैंने ये इनवॉइस वैल्यू जनरेट की इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी सच वैलिड एंट्री ऑफ HSN कोड, और जहां पे ये ब्लैंक होगा वहां ब्लैंक दे दिया। ये फार्मूला लगा के इसको मैंने थ्रू आउट कॉपी कर दिया। तो ये इस तरीके से मेरा इनवॉइस नंबर निकल गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इनवॉइस नंबर के बाद मेरे को जिस हिसाब से उन्होंने मांगा हुआ है कि मेरे को अलग अलग रेट के हिसाब से AB लगाना है और उनका टोटल करना है, तो मेरे को ये लगा कि मेरे को इस इनवॉइस नंबर के बाद रेट भी लिखना चाहिए। और रेट लिखने के लिए मैंने फार्मूला डेवलप किया। क्या फार्मूला डेवलप किया, इफ J4 यानी कि ये सेल अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक, और अगर ब्लैंक नहीं है तो J4 लिखे, और उसके बाद क्या करे वो, उसके बाद इसको रीड करे। और इसका लिए मैंने फार्मूला क्या बनाया, 100 में मैंने F4 ऐड किया, यानी कि जब 0 है, अगर हम 0% को न्यूमेरिक फिगर में लेंगे तो 0 ही आएगा, और जब 5% को लेंगे तो 0.05 आएगा। तो अब मेरे को इसको ट्रांसलेट करना था 2 डिजिट्स में। मैंने क्या किया, 100 प्लस F4 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसकी राइट वैल्यू, मतलब मैंने पहला सिंगल डिजिट को ड्रॉप करना है, तो मैंने राइट साइड में जो आएगा आखिरी 2 डिजिट्स उसको ले लिया। और ये लेने से क्या होगा, इसके बाद ये 0.00 ऐड हो गया। 00 मीन्स 0.00, 00 इज 0%। अब अगर यहाँ 5 पे जाएंगे तो यहाँ 0.05 ऐड हो गया। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट थी कि आखिर में 2 डिजिट्स डॉट मैंने लगाया, सबसे पहले ये डॉट लगाया, और उसके बाद 2 डिजिट्स ऐड की, और वो दो डिजिट्स डिनोमिनेट करती हैं कि ये जो परसेंटेज आ रही है, जैसे 0.05 है तो 05 आ जाए। इस तरीके से यहाँ पे अगर 12% है तो मेरे को वैल्यू मिल गई 0.12। तो ये फार्मूला मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया, 100 प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, और ये जो फिगर आ जाएगी यहाँ मेरा क्या आएगा, अगर यहाँ है तो 112 आ जाएगा। अब 112 में से मैंने राइट की 2 आइटम पिक कर ली, तो वो मेरे को 12 मिल गई, और उससे पहले मैंने डॉट लगा दिया। तो इस तरीके से इनवॉइस नंबर .12 इज नथिंग बट परसेंटेज से मैंने लिया। तो ये मैंने इनवॉइस नंबर एंड रेट दोनों एक सिंगल सेल में जनरेट की। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जब मैंने ये जनरेट कर लिया तो यहाँ पे रेपिटिशन है, जैसे यहाँ बढ़ते हैं हम, ये चारों सेम है क्योंकि चारों जगह रेट जो है वो 0% आ रहा है। अब मेरे को इसकी यूनिक वैल्यू चाहिए थी, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जाके एक यूनिक का फार्मूला लगाया, K4 से K109, यानी कि यहाँ से लेके और एंड तक को मैंने सेलेक्ट करके इसकी यूनिक वैल्यू निकाल दी। अब जब मैंने यूनिक वैल्यू निकाली तो इसके बाद क्या हुआ, जो जैसे डुप्लीकेट आ रहे हैं 199.00, तो वो सब गायब हो गए, मेरे को सिर्फ यूनिक मिल गए। ओके, यूनिक वैल्यू निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि मेरे को यूनिक के बेस पे मेरे को सीरीज क्रिएट करनी है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। जब मैंने यूनिक वैल्यू निकाल ली, इसमें से ये फार्मूला लगा के यूनिक K4 से K109 मेरे को ये मिल गई। अब नेक्स्ट में आगे चलता हूं। अब मेरे को यहाँ पे ये रेट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को ये रेट सिर्फ तब तक चाहिए थे जब तक मेरे को ये सारे क्रिएट करने थे और इनमें से यूनिक वैल्यू निकालनी थी। जब यूनिक वैल्यू निकल गई, अब मैंने इसको हटाना है। हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसको काउंट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 कैरेक्टर आ रहे थे, तो मैंने लेफ्ट L4 #12 लगाया, यानी कि इसके पहले के 12 कैरेक्टर दे दे और बाद के .00 या डॉट के बाद जो भी लिखा है उसको वहां से डिलीट कर दे। सो दैट वे मैंने इसके और ये फार्मूला लगा के हैश यूज करने से ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे को ये यहाँ पे ये इनवॉइस नंबर मिल गया और ये इनवॉइस नंबर सारे यूनिक मिल गए मेरे को यहाँ पर। सॉरी, ये जो इनवॉइस नंबर यूनिक नहीं मिले, ये इनवॉइस नंबर इसके रेफरेंस में मिल गए। अब यहाँ पे हम 200 जैसे देख रहे हैं, इनवॉइस नंबर 200 पहली बार आ रहा है, फिर दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है। तो हमारी इंटेंट क्या थी
जब पहली बार आए तो इसको यही लिखना है, दूसरी बार आए तो इसके साथ ए ऐड करना है, तीसरी बार आए तो इसके साथ बी ऐड करना है। और जब मैंने सारे चेक किए तो 3 से फालतू बार कोई भी नहीं आ रहा था। तो मेरे को इसको रीड करना है, पहली बार ये आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है। तो इसके बाद मैं एक नेक्स्ट कॉलम में गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, काउंट इफ M3, यहाँ तो सिंपल ये M4 यानी कि ये अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक और नहीं तो ये फार्मूला, और इसमें मैंने काउंट इफ का फार्मूला लगाया M3 और उसके साथ डॉलर लगा दिया। यहां से शुरुआत करके रेलेवेंट यहां तक आए और इसमें ये रीड करे ये वाला कौन सी बार आ रहा है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट मिल गया। अब यहाँ पे ये चीज, यहाँ अगर मैं इसको F2 करता हूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पर्टिकुलर कितनी बार आया, इसने काउंट किया, मेरे को रिटर्न वैल्यू मिली 1। जब मैं इससे नीचे चलूंगा तो यहाँ पे F2, यहाँ पे क्योंकि ये दूसरी बार आ रहा है तो मेरे को ये 2 रिटर्न देगा, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू सेकंड टाइम आई है। सो दैट वे मैंने हर एक इनवॉइस की ये फ्रीक्वेंसी निकाली कि ये कौन सी बार आ रहा है। यहाँ पे पहली बार आया, यहाँ पहली बार आया, यहाँ ये पर्टिकुलर रिपीट हो रहा है यानी कि सेकंड टाइम आया, यहाँ थर्ड टाइम आया। अब ये निकालने के बाद मैंने एक के अगेंस्ट में मेरे को कुछ नहीं लगाना है, और जहां 2 आता है 2 के अगेंस्ट ए लगाना है और 3 के अगेंस्ट बी लगाना है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला ये लिखा, अगर N4 यानी कि दिस अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक, और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो फिर इफ N4 इज इट इक्वल टू 1, अगर 1 है तो ये कुछ नहीं लगाए, और अगर ये 2 है तो ए लगाए, और अगर 2 नहीं है तो अल्टीमेटली 3 ही बचता है, 3 है तो बी लगा दे। तो ये फार्मूला मैंने लिखा और इस फार्मूला से मैंने यहाँ पे 1 2 3 को ट्रांसफॉर्म कर लिया किसमें, ए बी में। अगर 1 है तो वो हैश आ जाए, मतलब ब्लैंक आ जाएगा, नहीं तो वो ए बी। जब ये मैंने इसको लिख लिया तो उसके बाद नेक्स्ट सेल में चलता हूं, मैंने जो ये इनवॉइस नंबर जनरेट किया था इसके बाद इसको ऐड कर दिया, सफिक्स लगा दिया। ये मैं करता हूं, अगर ये ब्लैंक है तो ब्लैंक, नहीं तो M4 इज दिस प्लस O4, यानी कि ये जो मैंने सफिक्स लगाया था ए बी, ये उसमें और ऐड हो जाएगा। तो दैट वे मेरे को यहाँ पे ए बी जहाँ पे भी, मतलब सेकेंड टाइम आ रहा है तो ए, थर्ड टाइम आ रहा है तो बी, फर्स्ट टाइम आ रहा था कुछ नहीं। तो ये मैंने जनरेट किया। ये जनरेट करने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक इतना ट्रेवल करके आया, बट अगर मैं इसकी नेस्टिंग करूंगा तो मैंने इसमें से 2 कॉलम एटलीस्ट ये जरूर रिमूव कर दूंगा अगर मैं नेस्टिंग करूंगा, बट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए अभी नेस्टिंग इसकी नहीं की है। तो मेरे को ये इनवॉइस नंबर मिल गया, ये वाले इनवॉइस नंबर, ये सब इनवॉइस नंबर हैं जो मेरे को आउटपुट रिजल्ट में चाहिए। सो नाउ माय फोकस विल बी ऑन दिस कॉलम, कॉलम पी। इस कॉलम से मैं अब चलता हूं रिजल्ट में। ये रिजल्ट डिजायर्ड था और मैंने जो इसका सॉल्यूशन निकाला है उसमें मैं अनहाइड कर दूं जी, ये सॉल्यूशन मैंने निकाला। इस सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले ये इनवॉइस नंबर लिया और इनवॉइस नंबर P4 से P109 ओरिजिनल फाइल में, यानी कि यहाँ P यहाँ से लेके नीचे तक जो एंड तक जा रहा है, इस एरिया पे मैंने ये यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया और इसमें ये कहा कि अगर ये ब्लैंक नहीं है तो मेरे को ये इसमें यहाँ पे ये सारा फिल्टर करके मेरे को ये यहाँ पे इनवॉइस की लिस्ट देते। सो ये मैं कहाँ से लेके आया, जो मैंने यहाँ पे 4-5 हेल्पर सेल के थ्रू जो अल्टीमेटली पी कॉलम में जनरेट किया था, तो उसकी समरी मेरी सारी यहाँ पे इस फार्मूला के थ्रू मेरी यहाँ पर आ गई। और इसके नीचे ये कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ, 365 का फार्मूला है ये, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365 का। तो ये फार्मूला लगा के मैंने वो सारी इनवॉइसेस जनरेट कर ली, इनवॉइस नंबर, जो अगर सेकंड टाइम उसमें डिफरेंट रेट आ रहा है तो उसमें ए ऐड कर देगा। जैसे ये 200 है, 200 में पहली बार अगर 5% 200 के अगेंस्ट जो रेट आएगा, अगर वो 5% आ रहा है तो कुछ नहीं लिखा, दूसरा आ रहा है तो ए ऐड कर दिया, फिर उसमें तीसरा रेट आ रहा है तो उसने बी ऐड कर दिया। सो इस तरीके से मेरे को इनवॉइस नंबर इस कॉलम में जनरेट हो गए। अब इसके बाद मेरा सारा काम रेडी है, मैंने सिंपल फार्मूला लगाया और यहाँ पे मैंने ये देखा, ये जो C6 है, इसको इस
को मैंने 12 यानी कि मैंने ए छोड़ देना है, ए को नहीं रीड करना है, यानी कि 12 पहले लेफ्ट से लेके 12 कैरेक्टर्स को मैंने रीड किया, एक्स लुकअप फार्मूला लगाया और डी कॉलम पे मैं यहाँ गया। डी कॉलम में क्या है, इसमें मेरे इनवॉइस नंबर हैं, इसके ऊपर मैंने वी लुकअप लगाया और मैंने रिटर्न क्या मांगा, सी मांगा मैंने, ओरिजिनल का सी, ये इसमें सी, ये सी में मेरी डेट आई हुई है, तो इसके ऊपर एक्स लुकअप लगा के ये मेरे को रिटर्न वैल्यू डेट मिल गई। सो दैट वे आई कुड रीच टू डेट। सिमिलर फार्मूला इसको लगा के सिर्फ मैंने सेल का रेफरेंस नंबर चेंज किया, यहाँ पे सीसी है और अगर यहाँ मैं जाता हूँ तो बीबी लगा दिया, बीबी में नाम लिखा हुआ, मेरे को नाम मिल गया। सो नाम और डेट इस इनवॉइस नंबर के बेस पे मेरे को मिल गए। अब मैं ऐसे ही चलता हूँ, सेम वे मेरे को जीएसटी का रेट मिल गया। जब मैंने ये इसके ऊपर लगाया, ये मैंने कहा एलएल पे लगाया, मैं एलएल देखता हूँ कहाँ पे है इसमें, एलएल, एलएल के मैंने एंड के 2 कैरेक्टर मैंने उठा लिए यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये मैंने फॉर्मूला लगाया इसका, C6 को मैं एक्स लुकअप में लेके जा रहा हूँ और पी पर मैं ढूंढ रहा हूँ इसको, यहाँ चला मैं पी, इसमें मैंने उसको सर्च आउट किया और रिटर्न वैल्यू मैंने क्या मांगी, रिटर्न वैल्यू मैंने कही कि राइट साइड के 2 कैरेक्टर एलएल के दे दे, और एलएल कहाँ है, एलएल ये है और इसमें राइट कैरेक्टर ये 2 जो डिनोमिनेट करते हैं किसको, परसेंटेज को, तो ये मेरे को इसकी परसेंटेज मिल गई। सो दैट वे मेरे को यहाँ पे रिटर्न मिला परसेंटेज, तो यहाँ पे 0% है, यहाँ पे 5 है। सो एक सिंगल फार्मूला यहाँ मैंने लगा के हैश यूज किया और ये नीचे तक स्पिल ओवर हो जाता। और उसके बाद मैं चलता हूँ, ये मैंने यहाँ पे सम इफ फार्मूला यूज किया है। जब सम इफ फार्मूला यूज किया, पहले C6 को बेस बनाया, ये अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक और ब्लैंक नहीं है तो सम इफ्स में जो मैंने यूज किया ओरिजिनल फाइल में जीजी, इसमें जीजी का सम मेरे को करना है और जीजी में मेरे को क्या मिल रहा है, बेसिक वैल्यू, यानी कि बेसिक वैल्यू का मेरे को टोटल चाहिए। तो ये पहली चीज हो गई, मेरे को जो रिटर्न चाहिए यहाँ पे सम जिसका। और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में ये क्या है, जे में चलते हैं। ये जे में यानी कि ये जो इनवाइस नंबर लिखे हुए हैं ये यहाँ पे, इसका मेरे को क्राइटेरिया में इसको टेस्ट करना है और इसको किससे कंपेयर करना है, जे को मेरे को कंपेयर करना है एफएफ से, और एफएफ मेरे को कहाँ, ये वाला। सो एफएफ से कंपेयर करने के बाद मेरे को, नहीं एक सेकेंड, इसमें जीजी का टोटल करना था, जे को कंपेयर करना था, और इसमें मेरे को C6 की, यानी कि C6 इसकी शुरू की 12 टर्म्स आखिरी इसको छोड़ के, एक तो ये कंपेयर करना था और दूसरा मेरे को सेकंड कंडीशन जो लगानी थी सम इफ में एफएफ इसमें चलते हैं, एफएफ इसके अंदर, और रेट मेरे को क्या देखना था, रिजल्ट D6 इस रेट को देखना था। सो ये 2 कंडीशन लगा के मैंने सम इफ किया और मेरे को ये इनवॉइस यानी कि इस इनवॉइस के शुरू की टर्म्स और 0, ये 0%, इन 2 के बेस पे मेरे को ये सम इफ मिल गया। सो दैट वे आई हैव वर्कड आउट ये सम इफ। और उसके बाद सेम फार्मूला मैंने जीएसटी का लगाया, जीएसटी निकल आया। जब ये लगाया, अभी एक सेकंड के लिए इसमें डिफरेंस आ रहा है, लेट मी फाइंड आउट, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, एक सेकंड मेरे को दीजिए। C6 में 12 और एफएफ में ढूंढना, एक मिनट, मैंने इसका शॉर्टर दूसरा भी बनाया था, दिखने दीजिए। कोई बात नहीं, वो तो ऐसा ना कंसेप्चुअली आपने जो किया है दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, वो तो डिफरेंस तो लाइक एक मिनट, जो करेगा वो ढूंढ ही लेंगे।
एक मिनट जरा, ये दूसरी फाइल है, इसमें मैंने सेम चीज ही यूज की है। हाँ। दूसरी फाइल, और इसमें मैंने क्या किया था, एंड में इन 3 सेल्स को कंपैक्ट कर दिया था, जो नेस्टिंग कर दी थी। और यहाँ देखते हैं रिजल्ट। हाँ, यहाँ मेरे को रिजल्ट बिल्कुल ठीक मिल रहा है। इसमें शायद फार्मूला में कहीं कोई एरर रह गई है। हाँ, ये एरर समझ में आ गई। मेरे को परसेंट लगाना था, उसमें परसेंट नहीं लगाया हुआ, इस वजह से दिक्कत हुई है। लेट मी करेक्ट दैट, इसमें मैं ठीक कर देता हूँ। और ये जो फार्मूला यहाँ था, यहाँ पे D6 के बाद परसेंट लगना था, दैट वाज द एरर। और इसको मैं नीचे तक ले जाता हूँ, कंट्रोल D, या मेरा डिफरेंस दूर हो गया। और इधर चलता हूं मैं, यहाँ पर भी मेरे को परसेंट लगाना था, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है और वहां पे परसेंट लिखा हुआ है, यहाँ इधर परसेंट लिखा हुआ है, तो ये परसेंट लगना रह गया था। मैं यहाँ परसेंट लगा देता हूँ और इसको मैं नीचे तक कॉपी कर देता हूँ। हाँ, जब मैंने कॉपी किया तो इनका जो समरी आ रही है, समरी का टोटल इतना आ रहा है 789 और इसका 13,000, और यही टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें 789 और 13, ये इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो मेरा रिजल्ट टैलिड है। राउंडिंग ऑफ में 1 रुपए का डिफरेंस है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से है। तो दैट वे ये मेरे को रिजल्ट मिला और मैंने ये तरीका अडॉप्ट किया जी। सो दैट वे मतलब मेरे को यहाँ पे ये इनका यूज करना पड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने कॉलम यूज किए हैं, और इन 2 को मैं नेस्टिंग कर दूं, जो मैंने आगे दूसरी फाइल में की भी है, तो 5 कॉलम मेरे को यूज करने पड़े और 5 कॉलम के थ्रू मैं इसको ये लेके आया हूँ। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फ्रॉम माय साइड। और GSTN नंबर मैंने मास्टर से एक्स लुकअप लगा के वहां से जो यहाँ जो इंफॉर्मेशन है वहां से ये मैंने ले लिया। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। नाउ ओवर टू विजय अग्रवाल जी, हम कैसे इसको श्रिंक कर सकते हैं या कोई और बेहतर इसका। नहीं ठीक है, बिल्कुल। लेट मी कमेंट ऑन इट। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो आपने देखो ये जो सॉल्यूशन बनाया, लाइक जो ना, आई रियली अप्रिशिएट कि इतनी मेहनत की, इतना ये किया, बट इसको हम जो है, मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि जल्दी और कितना यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको जो ना बिल्कुल यूजर फ्रेंडली और जल्दी वाला सॉल्यूशन, जो कोई भी कर सकता है, 2 मिनट 5 मिनट में कर सकता है, उस सॉल्यूशन पे मैं आपको लेके चलता हूं, जो मेरे को समझ में आता है। मतलब आपका ठीक है कि भाई, लेकिन उसको कैसे हम इजीली बना सकते हैं, उस सॉल्यूशन को हम देखते हैं। राइट? जी जी जी, बिल्कुल। दैट इज द रियल पर्पस। हाँ, मैं आप अभी जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और फिर उसके बाद जो है लेट्स सी कि कैसे ये काम करेगा। ये आपका डेटा था, आपका स्क्रीन नजर आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। तो ये देखो जी, मैं इसके अंदर जो प्रपोज जो कर रहा हूं कि कैसे करना है, तो ये वाला जो ओरिजिनल डेटा है, जैसे राइट, इसी ओरिजिनल डेटा के ऊपर ही हम बात करते हैं जैसे, ठीक है। अगर इसी डेटा को मैं एक बार इसी की एक नई सीट बना लेता हूं, ताकि ये रीनेम और मैंने विजय के नाम से बना लिया। राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको पूरे को सिलेक्ट किया, जो मर्जिंग सेल्स थे उनको सबको हटा दिया, मर्जिंग खत्म कर दी इसमें से। मैं बताना भूल गया, मैंने भी पहला काम यही किया था, बट मैंने उसमें बताया कोई बात नहीं जी। हाँ, तो ये मर्जिंग मैंने जैसे खत्म कर दी, और मेरे जो है ये ऊपर वाले जो है ये मेरा हेडर है, और ये वाले चीज ये मेरी पड़ी हुई। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे जा करके एक, यहाँ पे जैसे जो ये है डेटा, इसके अंदर जा करके ये, क्योंकि इसमें ये देखिए ये पड़े हुए हैं ना जैसे इसके अंदर, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया कि एक ब्लैंक रो पड़ी हुई है। मैं देसी जुगाड़ बता रहा हूँ, बड़ा जल्दी से हो जाएगा। ये तो मेरे को बताने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो करोगे तो टाइम ही नहीं लगेगा। अब इसके अंदर ब्लैंक रो पड़ी हुई है फालतू की, जो कि मेरे को चाहिए नहीं। राइट? ये ब्लैंक रो पड़ी हुई है मेरे पास, ये ब्लैंक रो मेरे को, यहां से मैं गया और ये ब्लैंक रो भी मैंने, और ये टोटल वाली भी रो भी मैंने हटा दी यहां से। यहां तक समझ में आ गया जी? जी, बहुत बढ़िया। और अब इसके अंदर जो है ये वाली जो चीज मेरी ये जो पड़ी हुई थी यहाँ पे, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया
और जाकर के मैंने F5 दबाया, स्पेशल किया, और इसमें जाकर के मैंने ब्लैंक्स को सिलेक्ट किया। तो ब्लैंक्स के नीचे में ऊपर वाली चीज चाहिए मेरे को, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू करके और ये करके कंट्रोल एंटर कर दिया। ये देखिए, ये मेरी जो है ना सबके अंदर मेरी जो है डाटा आ गया मेरा। यहां तक समझ में आ गया? जी बिल्कुल ठीक जा रहा। तो बस इतना सा काम आपने जो है ये मेरे हिसाब से करना था। इसके बाद कोई आपको कॉलम वोलम की किसी चीज की मेरे को नहीं लगता कोई जरूरत पड़ेगी आपको। अब यहाँ पे हम गए और इंसर्ट में गए और इसमें जाकर के मैंने बोला कि मेरे लिए एक भाई पिवट टेबल बना दो ये, राइट? ठीक है जी। अब पिवट टेबल में आपको क्या क्या चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए वो मेरे को बता दो। पार्टी इसके अंदर जो है ना नेम चाहिए आपको, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, यही चाहिए ना आपको, राइट? और तो इनवॉइस नंबर के साथ वो जितनी बार रेट आएगा वो ए भी ऐड होगा। हाँ 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 हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको, वो सब हो जाएगा जैसे। तो अभी हम यहाँ पे आ गए जैसे, तो अब इसके अंदर मेरे पास पार्टी नेम जो है वो मेरे पास पार्टी नेम आ गया, राइट जी। इसके बाद मेरे को इनवॉइस डेट है, वहां पे इनवॉइस डेट आ गई, और यहाँ पे मेरे पास इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे मेरे पास इनवॉइस नंबर आ गया। और मेरे को इसमें क्या चाहिए, जीएसटी रेट है, वो जीएसटी रेट भी इसी के नीचे डाल दिया मैंने, राइट? और बेसिक वैल्यू को मैंने यहाँ पे डाल दिया, जीएसटी वैल्यू को मैंने यहाँ पे डाल दिया, टोटल अमाउंट को मैंने यहाँ पे डाल दिया। इतना समझ में आ गया जी आपको? जी हाँ जी राकेश जी। जी बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी सर। ये देखिए मैंने जो है ना कितना काम किया है, बस सिंपली मैंने वो डाटा लिया, मर्जिंग हटाई, वहां से फिल्टर लगा करके जो ब्लैंक रो थी किसी भी एक कॉलम में जाकर के ब्लैंक रो थी वो हटाई मैंने, और उसके बाद F5 लगा करके जो मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू थी, जो मैं हमेशा अपनी वेबिनार से बताता हूं कि मैंने उसको फिल कर दिया ऊपर वाले से। इसके बाद मैंने एक पिवट बनाई, पिवट में से मैंने ये वाले कॉलम मैंने इसमें रो में डाल दिए, ये वाले वैल्यू में डाल दिए। अब इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे पिवट डिजाइन में जाकर के रिपोर्ट लेआउट में टेबुलर फॉर्म को सिलेक्ट किया। रिपोर्ट लेआउट में मैंने रिपीट ऑल आइटम लेबल्स को सिलेक्ट किया, सब टोटल में से डू नोट सब टोटल्स को हटा दिया, और डिजाइन में ही ये इसके अंदर ही यहाँ पे पिवट टेबल जो एनालिसिस है इसी के अंदर मैं अगर जाऊंगा, यहाँ पे ये प्लस माइनस का जो बटन है ये भी हटा दिया। अब ये देखो जी, इतनी ये डेटा आपका ये बन गया, ये ठीक ठाक बन गया इतना। यहां तक का अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे को बताओ आप। जी वंडरफुल। इसमें तो ये देखो वाला पार्ट दोबारा रिपीट करिएगा, ये जो आप बता रहे हैं पार्टी नेम। क्या? नहीं, मैंने तो पिवट टेबल बनाई ना मैम, ये हाँ देखो जी। मैंने जो है ना ये यहाँ तक ये पिवट टेबल ऐसे बनाई थी मैंने, ये डाल दिया, देखो पार्टी नेम डाल दिया, इनवॉइस डेट डाल दी, इनवॉइस नंबर डाल दिया, जीएसटी रेट डाल दिया, चार चीज तो मैंने रो में डाल दी, और बेसिक वैल्यू, जीएसटी वैल्यू, टोटल अमाउंट ये मैंने वैल्यू में डाल दी। बस ये तीन, यही काम किया मैंने। तो भाई HSN कोड की मेरे को जरूरत नहीं थी, तो HSN कोड मैंने हिलाया नहीं, और सीरियल नंबर की जरूरत नहीं थी, उसको नहीं हिलाया। बाकी तो जो भी चीज थी वो मैंने डाल दी बस इसके अंदर। अब इसका लेआउट जो है क्योंकि ठीक नहीं है, तो मैंने लेआउट को ठीक करने के लिए डिजाइन पे गया, रिपोर्ट लेआउट में मैंने बोला टेबुलर फॉर्म में चाहिए मेरे को। मैं रिपोर्ट लेआउट में गया, मैंने बोला रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, जैसे खाली है तो उसको ऊपर वाले को रिपीट कर दो। मैं सब टोटल में गया, मैंने बोला डू नोट सब टोटल। मैं पिवट टेबल एनालिसिस में गया, मैंने बोला प्लस माइनस का ये बटन आ रखा है, ये नहीं चाहिए मेरे को, इसको हटा दिया मैंने। ये मैंने काम यहाँ पे कर दिए सारे। इसको भी अगर मैं पिवट टेबल फील्ड्स को बंद करना चाहूं तो ये भी बंद कर सकता हूं। तो मेरे पास ये टेबल बन करके डाटा आ गया। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे इनवॉइस वाइज मेरे पास परसेंटेज जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो मेरे को परसेंटेज चाहिए उसके हिसाब से मेरे पास ये चीज आ गई। जैसे उसके अंदर अगर आप देखोगे यूडीन ये मजूमदार है जैसे, तो ये देखिए 0% भी आ गया, 5% भी आ गया, 10% भी आ गया। जबकि वहां पे अगर आप देखोगे डाटा में तो इसके अंदर ये देखिए मजूमदार के अंदर यहाँ पे ये देखिए 0% की 3 एंट्रीज थी यहाँ पे, इसका तीनों का टोटल आ गया ना वहां पे। एम आई राइट? ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये मतलब अभी तक हमने कोई फॉर्मूला तो लगाया नहीं है, कोई मतलब ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन तो हमने किया ही नहीं है, सारा का सारा डाटा मेरा बन गया। अब इसमें बस एक प्रॉब्लम ये आई है कि इनवॉइस नंबर में उसको ये चाहिए कि जहां पे ये सेम इनवॉइस नंबर है, जैसे 203 इनवॉइस नंबर है, वहां पे 0%, 5%, 10% है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, एज इट इज चाहिए, यहाँ पे ए चाहिए, यहाँ पे बी चाहिए। एम आई राइट? जी राकेश जी ठीक जा रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक, एकदम परफेक्ट जा रहा है सर।
चलिए जी, अब मैं यहाँ पे क्या किया, इसके बगल में ही, यहाँ पे मैं गया इसके बगल में, ये चीज मैं वहां पे भी कर सकता था, लाइक उस डेटाबेस के अंदर भी, लेकिन मैं यहाँ पे मैं करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया न्यू इनवॉइस नंबर। एक मैंने यहाँ पे ये कर दिया न्यू इनवॉइस नंबर की, ये मेरा एक हेल्पर कॉलम, आप इसमें बोल सकते हो कि मेरे को एक न्यू इनवॉइस नंबर का मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने क्या लगाया फॉर्मूला, इक्वल टू काउंट इफ, और काउंट इफ लगा करके मैंने इसको बोला कि ये वाली जो चीज है इसको काउंट इफ करे और यहीं तक का ये काउंट इफ करे, और इसके बाद मेरे को यहाँ पे ये नंबर लेकर के आ जाए। ये आ गया। डॉलर नहीं लगा सर शुरू में इसमें, अच्छा डॉलर, हाँ इसमें मेरे को C4 स्टार्टिंग में से पहले, हाँ स्टार्टिंग में मेरे को ये डॉलर लगाना था C4 पे, यहाँ पे ये लगाया और इसको पकड़ करके मैंने खींच दिया, तो ये आ गया। आप मेरे पास जो भी होगा सीरियल नंबर आ जाएगा मेरे पास, राइट जी? जी जी बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अलग से मैंने ये किया यहाँ पे कि आप ये कह रहे भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितने मर्जी होंगे। जैसे यहाँ पे 2 वाले में तो मेरे को A चाहिए, ये आप कह रहे हो B चाहिए, C चाहिए, D चाहिए, E चाहिए, कल को ये भी है, और 1 वाले में मैंने बोल दिया इक्वल टू और यहाँ पे ब्लैंक डाल दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट भाई? जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, क्या ये मैंने एक टेबल सी बना दी, छोटी सी टेबल जैसे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरे पास आया है इसको मैंने बोला एक्स लुकअप बोल दो या वी लुकअप, ये किसी भी वर्जन में चल जाएगा, मतलब मेरा जो है किसी भी वर्जन में चल जाएगा, उसके लिए कोई ये नहीं कि कोई लंबा चौड़ा इसमें ये करना है। यहाँ पे मैंने इसको ये सिलेक्ट किया, F4 किया, (2, 0), और यहाँ पे करने के बाद इसके अंदर जहाँ पे ब्लैंक होगा ब्लैंक आ गया, जहाँ पे ए था वो यहाँ पे आ गया, और इसी को मैंने जा करके इससे पहले इसको सिलेक्ट किया, एंड का निशान लगाया, और इसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे जाकर के ABC जो भी आपको चाहिए था वो इसमें आ गया होगा। देखो एक मिनट चेक करो, इसमें जो चीज आपको ये मौजूददार चाहिए था, यहाँ पे 203 भी आ गया, A भी आ गया, B भी आ गया। यही चाहिए ना जी? हाँ जी सर, एकदम परफेक्ट। इसमें बस अब वो GSTN नंबर और ऐड करना है, वो भी एक्स लुकअप से आ जाएगा। वो तो एक्स लुकअप से या वी लुकअप से आ जाएगा, हमने नया फॉर्मूला जरूरत ही नहीं ना इसके अंदर। GSTN नंबर अगर हमारे को चाहिए, जैसे वो अगर हमारे को, तो सर वी लुकअप यूज करना बंद कर दिया। नहीं मैं, अरे सर बात ये नहीं कह रहा मैं, वी लुकअप तो एक्स लुकअप तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक्सेल 365 नहीं, मैं तो ये सॉल्यूशन में बता रहा हूँ कि ये जो आपको चाहिए यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ पे ये चाहिए नंबर, तो इसके अंदर हमने ये किया (2, 0) ये लगा दिया। अगर इसके अंदर क्या चीज, अच्छा हमने ये नहीं डाला ना इसमें जा करके, और ये नाम इसके अंदर ये डाल दिया। अब इसके अंदर कुछ वहां पे मिसिंग है तो वो NA आ जाएंगे जो हमारे को नहीं चाहिए जैसे, और ये वाला स्टेप हम जो है ना उसमें भी कर सकते थे ओरिजिनल डाटा के अंदर, और वो वहां से हम इसको हटा ही सकते थे, उसको अगर नहीं लेके आना तो उसको वहीं से भी हटा सकते थे यहाँ से। तो बस ये आपका जो है ना सॉल्यूशन बन गया भाई, बस हो गया काम इसमें आपका। ये टोटली मैच करेगा। फेरर ब्लैंक कर दो सर, नहीं है तो ब्लैंक आ जाए, क्योंकि आपने एक्स लुकअप डाला, वी लुकअप डालते तो अपने आप आ जाता, इफ एरर लगा दो सर। नहीं वो तो लगा दे, मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन ये तो वैसे मेरे को लाइन चाहिए ही नहीं थी, अदरवाइज तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला जो फॉर्मूला जो मैंने लगाया है, ये फॉर्मूला तो मेरे को यहाँ पे लगाना चाहिए था, मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ लगा दो वहां लगा दो, एक ही बात। नहीं यहाँ पे लगाने का एक फायदा होता मेरे को, ये अगर मैंने यहाँ पे लगाया जैसे, उसका एक फायदा क्या होता मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि क्या फायदा होगा इसका, कि ये जो मैंने Ctrl+C लगाया मैंने, इसके अंदर जाकर के मैंने Ctrl+V लगाया, और इसको मैंने यहाँ पे ये लगाया जैसे, और इसको पकड़ करके मैंने खींच दिया जैसे, ये मेरे क्या आ गए, GSTN नंबर आ गया क्या जी? कुछ नाम है नहीं, कुछ नाम है नहीं, तो इसलिए नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है उसकी बता रहा हूँ, B2C होगा। तो ये वाले जो है, अगर आपने इफ एरर जैसे आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया तो ये इसके अंदर मैंने कर दिया नॉट अवेलेबल, राइट? तो इसका फायदा क्या होगा, जैसे मैंने ये जो लगाया है जैसे इसके अंदर, इसको मैं ये कर सकता हूँ कि सपोज करो मैंने ये लास्ट में ही लगाया जैसे मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाकर के मैंने ये जो टेबल थी जैसे, इसको जाकर के मैंने रिफ्रेश कर दिया जैसे, तो इसको रिफ्रेश करने का मेरे को फायदा क्या होगा कि ये जो मैंने कॉलम लगाया था यहाँ पे, इस कॉलम की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फील्ड लिस्ट पे मैं आया,
और यहाँ पे देखिए मेरा GSTN है, इस GSTN को मैंने ऊपर डाल दिया जैसे, और ऊपर डालने से मेरे को क्या फायदा हुआ, मैंने इसके अंदर से मैंने बोला ये सिलेक्ट ऑल है, तो ये नॉट अवेलेबल के मेरे को चाहिए ही नहीं, जैसे मैंने, तो क्या हुआ इसमें से ये गायब ही हो गए वहां से। नहीं, नॉट अवेलेबल भी चाहिए था सर। नहीं चाहिए ना उसको नोट अवेलेबल, तो उसको तो ये चाहिए ना, आपने जो रिजल्ट चाहिए उसको नोट अवेलेबल चाहिए नहीं, उसको वही चाहिए जिसके अंदर ये नंबर आ रखे हैं उसको। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं जो गया इसके अंदर, यहाँ पे जाकर के मैंने नोट अवेलेबल चाहिए तो उसको मिल रहे हैं, ये थोड़ी कि नहीं मिल रहे हैं उसको। तो इसका लेकिन फायदा क्या हुआ कि ये जो GSTN नंबर है मेरा, इस कॉलम की मेरे को यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। उसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो GSTN नंबर भी अगर कहीं पे डालना है मेरे को, कहाँ पे डालना है उसके रिजल्ट के अंदर, उसको GSTN नंबर वो लास्ट में डाल रहा है वो, तो अगर बीच में भी कहीं पे डालना होगा तो मैं बीच में भी इसको सीट 4 पे जैसे मैं गया यहाँ पे, तो इसको कहीं पे बीच में भी स्टार्टिंग में भी डाल सकता हूँ मैं GSTN नंबर को, या मैं जहां मर्जी चाहूँ। यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, जैसे यहाँ पे इनवॉइस नंबर के बाद में डालना है, तो यहाँ पे जा करके इस GSTN को, अच्छा ये तो मैंने ऊपर किया हुआ है GSTN क्योंकि उसको सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे वो तो नीचे भी मैं कर सकता हूँ इसको, ये जो GSTN है इनवॉइस नंबर के बाद मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ जैसे इसको, और ये आपका फिल्टर लगा हुआ है मेरा, और इसमें से केवल वही वैल्यू आ रखी है, और इसके बेस पे मेरा ये पूरा का पूरा डेटा चल रहा है जी, सेम ठीक चल रहा है जी। इसमें देखो बहुत अब इसमें बढ़िया हमारे सर। वो भी हमारे गायब हो गए जैसे, और ये टेबल भी अगर मेरे को हटानी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जा करके ये जो मेरी टेबल बनी हुई है, जैसे इसमें ये जो VLOOKUP लगा रखा है मैंने, C कहां से मैंने, ये जो L2 के, इसको भी मैं जा करके F9 कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मेरी क्या होगी, टेबल भी मेरी यहाँ से गायब हो सकती है, तो मेरे को एक टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, परमानेंट मतलब जो है ना ये आपका इसी में आ जाएगा, ये देखिए। तो बस मेरा क्या फॉर्मूला लगा, एक ये फॉर्मूला लगा, और ये पूरा का पूरा मेरा रिजल्ट जो है सारा का सारा बन गया जी। आप जितने भी मेरे जो Excel 365 के फॉर्मूले थे वो सारे चले गए, कोई जरूरत नहीं है मेरे को, कहीं कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट, और कल को नया डाटा आएगा, बस आपने तो एक बार डाटा में बस ये करना है कि इसको जाकर के, बस ये मैनुअल है कि जो आपको F5 करके ये करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई भी चीज इसमें मेरे को नहीं लग रहा है कोई ये। सर वो टेबल हटाया तो आपने क्या किया सर, उसका F9 हटाया क्या? किसका? वो आपने टेबल जो हटाया है उसके बदले में क्या किया, वो F9 किया क्या? उसकी जगह पे मैंने इसी में डाल दिया ना, इसको पेस्ट वैल्यू कर दिया ना उसको, वो जो पेस्ट डाटा, वैल्यू कर दिया क्या? ओके, हाँ इसी के अंदर डाल दिया, ये टेबल के अंदर, पेस्ट वैल्यू कर दिया आपने। हाँ इसके अंदर जो डाटा था ना वो F9 करके इसके अंदर ही डाल दिया मैं, तो वो टेबल भी हट गई। जैसे इसमें ये हो गया 1 की जगह ब्लैंक, 2 की जगह A, 3 की जगह B, 4 की जगह C, 5 की जगह D, 6 की जगह E, और ये इस टाइप से मेरा ये बन गया। 6 से ज्यादा तो मेरे होंगे ही नहीं ना टेक्स्ट में, 0% है, 5% है, 12%, 18%, 28%, एक आध कोई और होगा तो बस वो एक 0% मतलब ये हो गया, तो इसमें ये आ गया, सारा का सारा बन गया मेरा। अब इसका जो टोटल वोटल है वो टोटल भी हम मिला सकते हैं, सब चेक कर सकते हैं, उससे आपका मैच भी करेगा ये। ये देखिए 7, 25, 734, 13, 408, 7, 39, 120, और ये देखिए मेरा भी जो है ना 7, 25, 734, 13, 408, और ये हो गया। ये केवल और केवल पिवट का सॉल्यूशन दिया मैंने आपको पूरा का पूरा, बस एक ये इनवॉइस नंबर के लिए मैंने एक अलग से ये दे दिया। बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, क्या बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। ग्रेट विजय जी, बहुत बढ़िया। तो बस भाई यही था मेरी तरफ से, तो बाकी तो आपका सॉल्यूशन तो देखो है ही बढ़िया, उसमें तो कोई बात ही नहीं, उसमें इतने सारे फॉर्मूले वगैरह जो है वो हमने लगाए हैं और किए हैं सारी। बढ़िया है सर। देखिए सर, आपने जो बनाया उसमें दो चीजें हैं, दो एस्पेक्ट हैं। सेकंड एस्पेक्ट है कि आपने पिवट टेबल यूज किया, और हाँ। हमें पिवट टेबल जरूर अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, वो हमें सीखनी चाहिए अगर नहीं आती हैं। और बहुत जगह देखने में ऐसा आता है कि हम दुनिया भर के फार्मूले लगा जाते हैं, और उसको हम अगर पिवट टेबल से करें किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है और काम बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ। और सेकंड, जो पहली वाली चीज आपने की, आपने ये कहा कि इनको जो हर एक सेल में हमें नाम चाहिए थे, बजाय इसके कि हम उसको फार्मूला लगा के करें, इसके लिए आपने एक बहुत बढ़िया उसका सॉल्यूशन दिया। हालांकि वो डायनामिक नहीं है, मतलब डाटा में हमें करना पड़ता है,
लेकिन ये टाइम सेविंग है, इतने दुनिया भर के फार्मूलाज लगाने की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम इसको डायनामिक बनाना चाहें तो जो मैंने फार्मूलाज यूज किए थे वो फार्मूलाज मतलब उस लेवल के फार्मूलाज को यूज करके हम इसको डायनामिक बना सकते हैं। बट उसमें हमें क्योंकि फार्मूला ज्यादा यूज करने पड़ रहे थे, ये इजी टू यूज है, तो ऐसे में कई बार हमें कॉम्बिनेशन भी यूज करना चाहिए। अगर डायनामिक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बट उससे एफिशिएंसी निकल के आ रही है। अब तो इसमें आप देखो ना, ये टोटल काम के अंदर ये तो मेरे को बताने में लगा, अगर मेरे को ये फाइल अब आप दे दो, घड़ी में आप टाइम देख लो, अगर ये पूरी की पूरी चीज बनानी है 3 मिनट में 2 मिनट में जो है ना, तो पूरा का पूरा बन जाएगा आपका, कोई टाइम थोड़ी लगेगा उसके अंदर जी। और सबसे मेन बात है बिल्कुल इजी है, लाइक कोई भी इसको यूज कर सकता है। मेरे को नहीं लगता कि जिसको भी थोड़ा सा बताएंगे कि पिवट टेबल में एक इसके अंदर अगर थोड़ा सा जो है बस एक ये फॉर्मूला है जिसको बस एक समझाने वाली बात है, अदरवाइज तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं। ये तो एक टेबल बना करके और ABCD ये कर दिया, कितना इजी सा ही हमने करके इसको ये कर दिया। ये इसको जो आपने बताया इससे पहले भी 1 या 2 दफा आपने करके दिखाया है, और हाँ। ये चीज हमें सीखनी चाहिए कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं अननेसेसरली एक टेबल बनाना। इट इज रियली अ ग्रेट लर्निंग। इट इज सिंपल, कोई ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं है, बट जब तक हमने नहीं किया होता, जब तक आता नहीं है, तो हमारे लिए पहाड़ होता है हाउ टू हाँ, रिमूव दैट। सो अपने आप में ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है कि हम टेबल को कैसे स्किप कर जाएं, टेबल की जरूरत को हम खा जाएं। हाँ हाँ। सो इट वाज रियली वंडरफुल थिंग। तो ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड, मेरे को तो भाई कोशिश हमेशा पहले ये होती है कि सबसे पहले कि उसको अनकॉम्प्लिकेटेड कितनी इजी करके ये करें। बाकी कॉम्प्लिकेटेड में तो मैं जितना मर्जी करके उसको पूरा का पूरा हवाई जहाज अगर हमने बनाना है जितना मर्जी बना दें हम, उसकी तो कोई बात ही नहीं। वो तो लेकिन तब बनाए ना जब कोई ऐसा सोल्यूशन आए, ऐसा क्वेश्चन आए जिसका हमारे पास है ही नहीं कि यार उसके अंदर तो बिना हवाई जहाज बनाए वो काम चलेगा ही नहीं हमारा, तब उसके अंदर तो बनाना ही पड़ेगा। जी। और इसको भी अगर आप जैसे ये बता रहे हो कि इसको डायनामिक बनाना हो तो इसको भी डायनामिक बनाया जा सकता है। मतलब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ये सेम सॉल्यूशन है, इसको डायनामिक कर सकते हैं। क्या डायनामिक कर सकते हैं? ये वाले जो चीज आपने ये लगा रखी है, जैसे जो फॉर्मूले लगा रखे हैं यहाँ पे, इसके अंदर आपको यही तो चीज आपको चाहिए ना, जो ये यहाँ पे हमारे को लाइक सेम जो चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू, जैसे इफ ये वाला जैसे मैं गया यहाँ पे A4 इक्वल टू ब्लैंक, तो मैंने क्या करना है, मेरे को ऊपर वाला चाहिए, अदरवाइज मेरे को क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। और मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, और इसको डालने के बाद मैंने इसको पकड़ के खींच दिया और इसको पकड़ करके यहाँ पे खींच दिया। तो ये देखिए जो आप जो कह रहे हो कि लाइक इसके अंदर जो है, तो ये मेरा डाटा डालेगा बंदा और यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, 1 सेकंड में आ जाएगा। ये भी मेरा परमानेंट हो गया। इसके अंदर इस तरफ मैंने ये टेम्पलेट बना करके कर दिया, और जो मैं पिवट बनाऊंगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक के डाटा की बनाऊंगा, इस डाटा की बनाऊंगा बस पिवट, उस डाटा की मैं बनाऊंगा ही नहीं पिवट। मेरे लिए ये डाटा हो गया पिवट बनाने के लिए। नहीं जी सर, एकदम परफेक्ट। जो आपने यहाँ पे पहले वाली सेल का लिया, अगर वो ब्लैंक है तो ऊपर वाली ले ले। हाँ। मैंने उसके बजाय मैक्स का फार्मूला यूज किया और एक्स लुकअप लगा दिया विद मैक्स। हाँ तो मतलब मैं इसमें से, नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मतलब वो तो सेम एक्स चीज है। लुकअप मैक्स की जी। जरूरत ही नहीं ना जी, ये तो बिल्कुल सिंपल। हमने ये हाँ, बोला हाँ, कि भाई जी। नहीं है इसमें, ना तो मेरे को मर्ज सेल को हटाने की जरूरत है, ये एज इट इज पड़े रहे। जब भी वो नया डाटा आएगा बस यहाँ पे कॉपी करे, कॉपी करते ही अपने आप बनेगा, इसके बेस पे पिवट बनेगी, उसके बेस पे सारा काम इमीडिएटली आपको मिलेगा, सारा का सारा पूरा का पूरा। बस रिफ्रेश करना है, यहाँ पे डाटा डालना है, रिफ्रेश करना है, हो गया काम। जी। सो अभी ये डायनामिक भी बन गया। डायनामिक भी बन गया ये। जी, बहुत बढ़िया विजय जी। ठीक है जी, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। वैसे ही आज हमारा जो है शुरू में, आई एम रियली सॉरी, लाइक जो है ना फर्स्ट टाइम चैंप एक्सेल के साथ ऐसा हुआ कि कोई ऐसे बाहर से कोई लोग, और एकदम से मेरे को थोड़ा लग रहा था कि एकदम से 8-10 लोग नए कैसे आ गए। मेरे को इतनी देर में मैंने एडमिट नहीं किया था, मे बी आप में से भाई नहीं एडमिट सर, किया। मैंने किया था, मैंने एडमिट किया था। हाँ वो हाँ बार बार बीच में वो कर रहे थे, मैंने सोचा जेन्युइन ही होंगे, बट हाँ हाँ, वही बात है ना, पता नहीं लगा ना भाई। मैं भी आपकी जगह तो भाई यही करता कि एडमिट, बस मेरे को थोड़ा सा लग रहा था यार 8-10 लोग कौन आ गए, ये एकदम से इतने जल्दी तो आते नहीं, एक एक करके आते हैं, और तो हमारी स्टार्ट हो गई थी। बट ठीक है, अभी भी 3 लोग, मोहित, हेमंत, आशीष, ये 3 लोग अभी भी वेटिंग रूम में हैं। बट एनीवे, क्योंकि हम जानते नहीं है तो इसलिए हमने इनको अलाउ नहीं किया होगा। हाँ हाँ, मैंने भी इसीलिए अलाउ नहीं किया। मैंने तो उसको मैसेज भी डाला था उनको कि भैया आप मेरे जी। को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और फिर उसके बाद हम जो है ना आपकी आइडेंटिटी चेक करके फिर आपको करेंगे एडमिट।
जी, एक साहिल जैन का मैसेज आ रहा है, एक हाँ, सेकंड हाँ। में पढ़ता हूँ मैसेज, ये हट गया। हाँ, एज यू सेड कि अगर न्यू इनवॉइस नंबर वाला कॉलम हम डेटाबेस में भी लगा सकते हैं, वो कैसे लगेगा? कौन तो सा? इनका ये कहना है कि इनवॉइस नंबर वाला जो नया कॉलम है वो हम डेटाबेस में भी लगा सकते थे, वो कैसे लगेगा? डेटाबेस में भी लगा सकते हैं, जी, वो जो कैसे आपने लगेगा? न्यू इनवॉइस यानी कि ABCD ऐड किया था, ABC ऐड किया था। नहीं, मेरे को लग रहा है कि वो जो है ना, जो न्यू इनवॉइस वाला है, वो पिवट के बाद ही लगाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो यूनिक हो जाएंगे। यहाँ पे 0% जैसे वहां पे वो 0% के 3 आइटम होंगे। तो मेरे को लगता है ये वाला जो है, ये पिवट टेबल के साथ में ही लगेगा यहाँ पे, ये वाला। यहाँ इजी है, बट मैंने जो हाँ, लगाया था वो वहां लगाया था, मैंने भी हाँ, यही नहीं, किया था सर। ठीक है, वो तो तो मैंने वो भाई। वहां पे डेटाबेस पे हाँ, लगाया था, क्योंकि वो मैं पिवट को नहीं यूज कर रहा था। बट ये बेहतर है कि हम इसको वहां ना लगाएं, यहाँ लगाएं। बट अगर इनकी क्वेरी को देखें तो इनकी क्वेरी के हिसाब से जो मैंने मतलब वहां पे वर्कआउट किया, तो उस तरीके से हम वहां भी कर सकते हैं, अगर डेटाबेस में हम करना चाहते हैं तो। बट जब राइट, हम राइट। पिवट लगा रहे हैं तो इट इज एडवाइजेबल कि हम यहाँ पे करें। हाँ, यहाँ पे देखो, अब ये कितना इजी, मैं ये बता रहा हूँ। देखो, फॉर्मूला आप खुद देखो, इसमें क्या कहीं पे भी हमने कुछ किया है क्या? ये देखो, एज इट इज, बिल्कुल सिंपल सा करके एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हमने पूरे उसके अंदर। जी, तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। और इसमें ये भी हो रहा है कि हमारे को जो नहीं चाहिए, जैसे इसके अंदर नोट अवेलेबल, अगर चाहिए तो नोट अवेलेबल इसको भी डाल दो आप, अगर चाहिए तो। जब मर्जी चाहिए आपको कर सकते हैं इसको। जी, डेफिनेटली सर, इट इज बेटर, हम्म। एफिशिएंट है, और ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है इसमें। ठीक है जी। और किसी का कोई कमेंट्स हो, किसी ने को और कोई चीज पूछनी हो, क्विकली प्लीज यू कैन आस्क, अदरवाइज लेट्स क्लोज फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा आपने पिवट टेबल का ये बताया यूज करने का। बहुत इजी इससे सॉल्यूशन कर दिया। मतलब लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए, तो हाँ, हाँ, खुश रहेगी इसको सीखें और अच्छे से। हाँ, नहीं, एक बार करके देखिए, आप अपने हाथ से करोगे ना, तो फिर उससे क्या है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ जो जी, चीज मैंने की है, एक बार 2 बार 3 बार आप खुद करोगे, तो उससे आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। ये वो लेके जो है इसी प्रॉब्लम को लेके फिर करेंगे, ट्राई करेंगे। राइट, राइट। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। थैंक यू। चलिए, ठीक है जी। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है, या कोई और अगर किसी का है, तो आप व्हाट्सएप पे तो आप कभी भी जो है क्वेरी लिख सकते हैं। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। राकेश जी, करें फिर, हाँ जी करें सर, क्लोज। जी जी सर, आज मैंने आपको क्वेरी भेजा था ईमेल पे। हाँ, एक क्वेरी, हाँ, आपका भी आया था मेरे पास। ये आप ये आपकी क्वेरी ये वाली थी ना? यस सर, यस सर। हाँ, हाँ, इसके ऊपर मैंने काम जो है ना कुछ किया है, जैसे काफी इंटरेस्टिंग क्वेरी थी ये। और इसके अंदर जो है ना, मैं ये ग्रुप पे भी शेयर करूंगा, और मैं इसका जो सॉल्यूशन, मैं आपको जो जुगाड़ है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। अभी तो एक्चुअली हम लेट हो गए, बट डेफिनेटली मतलब विल गिव आंसर, और मे बी नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन मैं आपको पहले ही दे दूंगा आंसर। ओके सर। ठीक है ना? तो ये वाली जो चीज है कि आप ये चाह रहे हो कि इसके अंदर सम इफ का फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, लेकिन वो लगाना चाह रहे हो केवल विजिबल सेल्स के ऊपर, कि हम जो भी यस इसके सर, अंदर ये सर। चेंज करेंगे, इसके बेस पे जो भी चेंज होगा, उसके बेस पे आपके रिजल्ट जो है चेंज होने चाहिए। अभी तो ये चेंज यस नहीं हो रहे सर। ना। अभी तो आपका ये सम इफ का फॉर्मूला लगाया मैंने, लेकिन अभी तो ये राइट। पूरे को दे रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो कि जो भी आपके ये रिजल्ट आ रहे हैं, इसी के ऊपर आपको चाहिए, राइट? यस सर, यस सर। तो एग्जैक्टली मैं इसको आपको मैं दूंगा, और इसके ऊपर जो है ना ये करेंगे, तो ये इसमें ग्रुप में भी डालेंगे, और आपको इंडिविजुअली मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ओके सर। सर, एक्चुअली क्या है ना, अपन मिलन का पाइवेट के यूज मैसेज से है, भी कर सकते हैं। क्या? अपन इसको मिलन का पाइवेट के मैसेज है, यूज से भी उसको कर आप प्लीज सकते हैं। ले लीजिए। क्या कह रहे हो? मिलन का मैसेज है, मैं उसको एडमिट कर रहा हूँ सर। हाँ, हाँ, कर दिया प्लीज। मैंने, कर दिया सर, कर हाँ दिया। जी, हाँ जी। जी तो जी क्या सर, कह रहे थे प्लीज आप? कंटिन्यू। सर, इसको अपन पाइवेट के यूज से कर सकते हैं, बट एक्चुअली मेरा डेटा है जो उसमें बहुत सारे कॉलम्स है, तो दैट वे आई वांट टू डू दिस वाइज, ये नीचे हाँ, टेबल रहे और साइड नहीं, में नहीं, ऐसा हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपने ये भी तो पिवट टेबल की तरह ही तो आपने लगा रखे हैं स्लाइसर यहाँ पे।
राइट राइट। तो पिवट टेबल में भी स्लाइसर ऐसे लगेंगे तो पिवट टेबल पे भी काम करेगा, ये 100% करेगा। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं पाइवेट टेबल में मेरे को नीचे वाला टेबल चाहिए तो उसमें मेरे को बहुत सारे कॉलम्स रो के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, राइट? हाँ 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 हाँ। ये सिंपल डेटा टेबल में मैं काम करूँ तो दैट्स व्हाई सर ये इसका थोड़ा बता देना। नहीं नहीं, तो इसमें हो जाएगा ना, इसी टेबल पे हो जाएगा काम। मैंने इस पे जो है ना कुछ ओके किया है, ये आपका इसी पे चलेगा, मतलब इसी के अंदर मैं आपको ये ओके फॉर्मूला सर, चेंज करके दूंगा तो ये चलेगा आपका। ओके सर, I'll share file with you, right? एंड फिर ओके नेक्स्ट सर, नेक्स्ट वीक हम जो है ना ग्रुप में डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है जी। हाँ जी, सर ये और कुछ कहने चाह रहे हैं? मिलिंद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? नहीं सर, मैं देख रहा था, दरअसल मैं यहाँ पे स्कूल की मैनेजिंग कमिटी में हूँ, तो Okay. मैं आपका सॉल्यूशन भी देख रहा था और मेरा पिवट टेबल तो फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं Okay. वो वही देख रहा था और मैं मीटिंग भी अटेंड कर रहा था। Okay. फिर मुझे दरअसल मेरा लैपटॉप है ना, उसमें थोड़ा इशू है जूम में कि मैं ऑडियो नहीं ले सकता, सिर्फ इसीलिए मैंने राकेश जी को रिक्वेस्ट की, मैं बोला मुझे प्लीज एक्सेप्ट करो, तो मैं कुछ बोल सकूं। नहीं, मैं देख रहा था सर, बढ़िया सॉल्यूशन है एकदम से। ग्रेट, ठीक है भाई, ठीक है राकेश जी, करेंगे फिर क्लोज? जी सर, जी आप क्विकली आधा मिनट के अंदर आज क्लोज श्योर है जी करते हैं सर। जी। विजय गुप्ता जी आज हमारे साथ किसी वजह से जुड़ नहीं पाए हैं, तो बड़े ही अच्छे अंदाज में वो शुरुआत करते हैं और उतने ही बेहतरीन अंदाज में बीच में शेर व शायरी जोड़ते हुए उसको वाइंड अप करते हैं। सो वी आर मिसिंग दैट थिंग टुडे, और उनकी एब्सेंस में इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। टुडे वी हैव अंडरटेकन 45th क्वेरी सेशन। इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड वी लर्न सो मेनी थिंग्स। अपने आप में एक क्वेरी होती है और वो क्वेरी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, कैसे हमें क्या क्या डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी है। सो इट वाज नॉट सिंपली वन क्वेरी, देयर वर नंबर ऑफ सच थिंग्स विच वी हैव लर्न। और बहुत बढ़िया तरीके से विजय अग्रवाल जी ने प्रेजेंट किया, और हमेशा वो ये काम करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन लाते हैं और कितना बढ़िया तरीके से वो शॉर्ट सोल्यूशन देते हैं। So thanks all the participants. Thanks Vijay Agarwal ji for joining. So thank you very much. Thanks everyone. Next week Saturday के दिन हम फिर मिलेंगे। कोरोना का दौर है, अपना अपना सब लोग ख्याल करें, और जो किसी को ज़रूरत पड़ती है, ये एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो है, हम आगे बढ़ के उनकी हेल्प करें। और स्पेशल थैंक्स टू विजय अग्रवाल जी। सो वी वाइंड इट अप। ओवर टू यू विजय अग्रवाल जी। थैंक यू वेरी मच। यस सर, मुझे कुछ कहना है। ये जो क्वेरी सेशन हमने जो लिया था, उसमें से मैंने एक क्वेरी सेशन खत्म किया है, तो मैं आपको भेजूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा राकेश जी, ये ठीक है कि नहीं है, तो वो हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मुझे पता नहीं दूसरे भी क्वेरी सेशंस बाकी होंगे। हाँ मिलन जी, कई लोगों का सिर्फ 3 लोगों, विजय अग्रवाल जी से आया है, श्वेता जी से आया है, और बाकी सबसे अभी अवेटेड है। तो आप वो कर लीजिए, और उसमें जो क्वेरी के नीचे 40th ऑनवर्ड जो है वहां से आप, या 35th ऑनवर्ड, जो भी एंड में नीचे 4-5 क्वेरीज का मैंने किया हुआ है, उसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा, एंड सेम वे यू हैव टू कंप्लीट। जी सर, ठीक है। तो जैसे ही वो पूरा हो जाता है तो हम उसको फिर ऑनलाइन कर देंगे। दैट इज लुक लाइक वो भी हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, और वो अपने आप में एक वैल्यू एडिशन होगी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। राइट सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है जी, प्लीज टेक केयर। नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई। श्योर सर, गुड नाइट सर, धन्यवाद सर।